جی ہاں، مسلمان 26 جنوری کیوں مناتے ہیں؟ یہ منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے؟ اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں دی گئی ہیں، تو آپ لوگ بنے رہنا، مکمل جانکاری لے کر کے جانا، ویڈیو کو بیچ میں اسکپ مت کرنا۔ کچھ بھائی ہوتے ہیں کہ آدھی ادھوری جانکاری لے کر کے جاتے ہیں، پھر الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں۔ جب مکمل دیکھ لو گے تبھی تو پتہ چلے گا نا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جن کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جنہوں نے یہ پیغام دیا ہے، ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا اکرم رضا، ماشاءاللہ، جو ہلدوانی کی ایک بڑی عالیشان مسجد میں پیش امام ہے، نمرہ مسجد میں، ماشاءاللہ۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، حضرت جو ہے ایک ہلدوانی کے اندر بہت پرانا ادارہ ہے جس کا نام ہے مرکزی دارالعلوم اشاعت الحق، جس میں 15-16 سال سے حضرت خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ایسے ایسے الحمدللہ شاگرد ہیں حضرت کے جو عالم، فاضل، مفتی بنتے ہیں۔ میں حضرت کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، میرے بڑے قریبی ہیں۔ ان کا ایک چینل بھی ہے MA حسانی نیٹ ورک کے نام سے، اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے 26 جنوری کیوں مناتے ہیں اور کیوں منانی چاہیے۔ 26 جنوری کو ہم گنتنتر دیوس کے روپ میں جانتے ہیں، جس میں ہمارے دیش کا سمویدھان لکھا گیا تھا۔ اور آج آپ جانتے ہی ہیں عزیزوں کہ سمویدھان کو کچلنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ اس پیغام کو سن لیجئے۔ حضرت کا چینل بھی ہے MA حسانی نیٹ ورک کے نام سے، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج کے نوجوانوں کو حضرت کے پیغام سننے کی، ان کی میسج جو یہ روزانہ دیتے ہیں اپنی ویڈیو میں، آج ضرورت ہے نوجوانوں کو، تو جائیں اور ان کے چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ پہلا آپ اس پیغام کو سنیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام ہی اہل وطن کو یوم جمہوریہ گنتنتر دیوس خوب مبارک ہو۔ جی ماشاءاللہ۔ ہم اپنے اس ہندوستان کے سچے ناگرک ہیں، اس لیے ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اس دن کی خوشی میں اپنے جو شہدائے کرام ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جی جی جی۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھنا مناسب سمجھی۔ جی پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، جی اس میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ بالکل۔ ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ جی 15 اگست اس لیے کہ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ صحیح بات۔ اس لیے ہم آزادی ملی، اس لیے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اور دوسرا ہے 26 جنوری۔ یہ 26 جنوری کیا ہے؟ تو 26 جنوری 1950 میں ہمارا یہ ملک جمہوری ملک بنا۔ جی یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے انگریز یہاں تھے، انگریزوں نے کالے قانون ہندوستانیوں کے اوپر تھوپ رکھے تھے۔ جی اپنے ظلم و جبر کے ساتھ بنائے ہوئے وہ قانون زبردستی ہندوستانیوں کے اوپر، یہاں کے ناگرکوں کے اوپر تھوپ رکھے تھے۔ اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ہمارا ملک جب یہ آزاد ہو چکا تو ہمارے اوپر اب قانون کسی دوسرے کا نہیں بلکہ ہمارے ہی ہندوستانیوں کا بنایا ہوا قانون ہمارے اوپر لاگو ہو، نافذ ہو۔ جی اس لیے 26 جنوری 1950 میں وہ ہمارے ملک کا بنایا ہوا قانون، آئین، سمویدھان ہمارے ملک پر لاگو ہوا۔ جی اس لیے اس دن کو ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو قانون بنا، سمویدھان بنا، تو یہ کوئی دن یا 2 دن میں نہیں بن گیا، جی بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ جی اور وہ تاریخ یہ ہے کہ 29 اگست 1947 میں جی ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جی جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر منتخب کیے گئے۔ جی اور یہ سمویدھان 2 سال 11 مہینے 18 دن، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کی مدت میں مرتب ہوا۔ جی اور ایسے ہی نہیں بلکہ تقریباً 393 ارکان اسمبلی کی موجودگی میں دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں، مختلف اجلاس میں، ایک ایک سمویدھان پر، ایک ایک دفعات پر، ایک ایک دفعہ پر، بحث پر، ایک ایک شق پر خوب بحثیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد
फिर ये कानून मुरत्तब हुआ और जैसे ही 26 नवंबर 1949 आती है तो इस कानून को मुरत्तब कर दिया गया और हिंदुस्तानियों के सामने पेश किया गया। जी। तो तमाम ही अरकान ने इसको कबूल भी किया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 में एक मुख्तसर सा इजलास हुआ और उसमें ये बात तय पाई कि अब इस कानून को नाफिज भी करना है। लिहाजा 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई जी। और उसके बाद 26 जनवरी को इस कानून को, संविधान को, हमारे आइन को हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर लागू कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। जी। इसीलिए हम इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। बेशक। मैं आपको एक बात और भी बतलाता चलूं कि जब हमारा हिंदुस्तान ये आज़ाद हुआ तो उस वक्त में एक मसला बहुत सख्त वाला ये भी दरपेश हुआ कि अब ये जो हमारा हिंदुस्तान है ये मजहबी रहेगा या लामजहबी रहेगा। जी। इसलिए इस बात की सख्त ज़रूरत थी कि यहाँ पर इस हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले जो लोग थे वो हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। जी। मुसलमान भी थे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। जी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा गया कि अक़लियत और अक्सरियत सबके हुकूक अदा किए जाएं, पामाल किसी का हक ना किया जाए। इसलिए इसको एक जमहूरी मुल्क बनाया गया जिसका मतलब ही ये होता है, और हमारे संविधान के आगाज में ये बात बड़े सुनहरे लफ्जों में आज भी लिखी हुई मौजूद है जी कि ये हमारा जो हिंदुस्तान है जमहूरी मुल्क है। इसका मतलब है कि हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान को अपने मजहब के एतबार से रहने का पूरा पूरा अधिकार हासिल है, इख्तियार हासिल है जी। और उसको अपनी आज़ादी, क्योंकि हम अब गुलाम नहीं रहे अंग्रेज़ों के, बल्कि हम अब अपने हिंदुस्तान में आज़ाद हो चुके। इसलिए आज़ादी ख्याल, आज़ादी अक़ीदा, आज़ादी मजहब व इबादत, हमारे इनफरादी तशख़्ख़ुस, हर चीज़ का अदब व एहतराम इसमें रखा गया। इसलिए मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकजहती किस चीज़ से कायम रह सकती है, वो तमाम कानून इसके अंदर बनाए गए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कानून, इस हमारा हिंदुस्तान का जो कानून था वो इस अंदाज में मुरत्तब किया गया था जी कि हर नागरिक को पूरा पूरा अधिकार मिल सके। अल्लाह। मगर मैं इसी मौके पर यह भी एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो दिन हमें देखने को नसीब हुआ ये ऐसे ही नसीब नहीं हुआ, बल्कि इस दिन के मिलने में हमारे हिंदुस्तानियों के नागरिकों की बहुत सी कुर्बानियाँ शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी की एक उंगली दो उंगली कटी हो, बल्कि अगर इस तारीख पर भी अगर नजर डालें तो ये भी एक जुल्म बर्बरियत से भरी हुई दास्तान है। आप यूं तो जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान के अंदर एंट्री की थी वो 1601 में पहला बहरी जहाज उनका यहां पर आ चुका, क्योंकि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा जरखेज हिंदुस्तान था, बड़ा सोना चांदी हर चीज की इसके अंदर भरमार थी। तो बहुत से मुल्कों की इसके ऊपर नजरें थी, इसलिए बहुत से मुल्कों ने इसको लूटने की कोशिशें की। यहाँ तक कि कई मुल्क यहाँ पर आए, कई मुल्कों वाले यहाँ पर आए, और जब बरतानिया को पता लगा तो उन्होंने अपना पहला बहरी जहाज 1601 में भेजा और वो कलकत्ता पहुंचे। और इस तरह से उनको वहां पर कामयाबी शुरू में नहीं मिली, लेकिन वो भांपते रहे, देखते रहे। हालात यहां तक बने कि ये बड़ी लंबी तारीख रही कि इसमें सल्तनत मुगलिया जो थी वो 18वीं सदी में कमज़ोर पड़ी, और जब 18वीं सदी में वो कमज़ोर पड़ी तो उन्होंने इस बात को ये समझ लिया कि अब यहाँ पर हम अपने पंजे सही से जमा सकते हैं। उससे पहले कई जंगें हो चुकी, टीपू सुल्तान को उन्होंने शहीद कर दिया, उसमें अपने लोगों की दगाबाजी की वजह से। एक बरतानवी का ये कहना था जिस दिन के टीपू सुल्तान को शहीद किया गया था कि अब हम हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो चुके हैं, अब हमने हिंदुस्तान पर फतह नसीब कर ली है।
इसी तरीके से सिराजुद्दौला को भी शहीद कर दिया गया। कितने बड़े बड़े बादशाह थे, उनको शहीद किया गया। मगर 18वीं सदी से ही अगर हिसाब किताब अगर आप लगाएं तो 18वीं सदी से जिसको कि ये लोग जंगे गद्र भी कहते हैं, जंगे बगावत के नाम से भी जानते हैं, तो उस वक्त से भी 1947 तक तकरीबन 90 साल हो जाते हैं। और इन 90 सालों में उन्होंने वो जुल्म और बर्बरियत की कि जिसको के दानिशवरान हजरात, मुअर्रिखीन हजरात सब जानते हैं। इसलिए इन तमाम तारीख को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें नजर ये आता है कि उसमें उनके निशाने पर जो कौम सबसे ज्यादा रही वो मुसलमान कौम थी। और उसकी वजह भी ये थी कि उन्होंने जो यहाँ की सल्तनत को अपने कब्जे में किया था तो वो मुसलमानों ही से हड़पा था, मुसलमानों ही के जरिए से वो उन्होंने सल्तनत को अपने कब्जे में किया था और उनके निशाने पर मुसलमान ही रहा करते थे। ऐसा वक्त भी आया कि जो दाढ़ी वाला नजर आता, कुर्ता पजामे वाला नजर आता, टोपी वाले नजर आते तो उनका खुला ये ऐलान था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। इसलिए मुसलमानों को तकरीबन 5 लाख मुसलमान उन्होंने शहीद किए और दिल्ली के अंदर 500 उलमा जिन्होंने के अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था तो तकरीबन 500 उलमा को उन्होंने शहीद किया। उन्होंने फांसी के तख्तों पर उनको चढ़ाया। अगर सबके नाम लिए जाएं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, अहले इल्म जानते हैं। जिसमें सर फहरिस्त अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, अल्लामा इनायत अहमद अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी हैं, किफ़ायत सैयद किफ़ायत अली मुरादाबादी हैं और हमारे हिंदुस्तान के बहुत से उलमा, बहुत सी तहरीकें जो जिन्होंने के जंग आज़ादी में खुलकर के सामने आए उनको खुलकर के बरसरे आम शहीद भी किया गया। बहरहाल उसके बाद में ये जंग जारी रही और बहुत सी कुर्बानियों के साथ कि हमको 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को ये आज़ादी मिली है। अब हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, मगर 26 जनवरी को हमारा संविधान भी हमारा अपना बनाया हुआ संविधान भी हिंदुस्तानियों के ऊपर लागू हो गया। मगर अब बहुत सी दफात उसकी ऐसी हैं कि जिसमें के मुदाखलत करके जो अक़लियत हैं उनको कुचलने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ तो हमारा मुल्क ये आज़ादी हमें देता है कि हर मजहब का मानने वाला इंसान अपने मजहब के मुताबिक पूरे तरीके से रहने का अधिकार रखता है और दूसरी तरफ मुसलमानों को निशाना भी बनाया जाता, उनके शरीयत में दखल अंदाजियाँ भी की जाती हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के कानून भी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए इस तरह के शर पसंद अनासिर जो हमारे हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने संविधान को माने जो हमारे मुल्क का संविधान है, आइन है। इसी के ज़रिए से हमारे मुल्क के अंदर सालमियत बरकरार रहेगी और इसी के ज़रिए से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हमें ये नहीं देखना है कि अब यहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं या अक़लियत हैं तो उनको शक की निगाह से देखें, बल्कि तारीख जानने वाले जानते हैं इस बात को कि इस जंग आज़ादी में अगर मुसलमानों की कुर्बानियों को अगर निकाल दिया जाता तो ये आज़ादी हमें हरगिज नसीब नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर सबकी कुर्बानियाँ शामिल हैं और हम तो ये मानते हैं और सब जानते भी हैं कि मुसलमानों की कुर्बानियाँ तो उसमें सबसे ज़्यादा हैं, सरे फहरिस्त वो हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, अपने मुल्क के जो संविधान है उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में तरक्कियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने कहा था ना राज की बात, वो यही राज की बात है कि जब अंग्रेज़ों ने अपने देश को गुलाम बनाया था तो जो शासन छीना था तो मुसलमानों से ही छीना था। और आपने सुन लिया होगा वीडियो में पूरे आखिर तक जो आपने देखी है तो आपने समझ लिया होगा कि सबसे ज़्यादा, यूँ तो सभी का इसमें सभी शामिल रहे हैं आज़ादी में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी हैं वो मुसलमानों ने दी हैं मेरे अज़ीज़ों, जिसको आज कोई नहीं बताता। चलिए बहरहाल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की हज़रत के ज़रिए से। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आप आखिर तक बने रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।